Hello students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our ALGA online classes with Dalit School at Home and with our PMIS home-based education. Today I am going to continue my Unit 2 Day 12 and that is my country. Understood? Children, as in my previous classes, I told you and I explained you what is the beginning sound, middle sound and end sound. Now let us do some activity. चलिए activity करते हैं. अगर it is belong from the same word families, then you have to show a thumbs up. And it belongs from the different word families, then thumbs down. Okay, children. Look, here it is RU and learn, FU and fun. First of all, tell me बच्चा, मुझे बताइए कि what is the same word family. अगर हमें same word family को ढूंढना है, तो what we will keep in our mind. Okay, we will keep middle sound and end sound that should be same. दोनों same letters होने चाहिए, दोनों same sound होने चाहिए. Understood? So let us start. Look at the first run, fun. It belongs from the same word family. Thumbs up. Gun, bun. Un word family है, right? It belongs from the same word family. Thumbs up. Now, gut. Sun. Think everyone, it is same word family or different word family? Okay, thumbs down, different word family. Now, nut, sub. Again, it is same word family or different word family? It's different word family. Very good, thumbs down. Okay, let us do one more recap revision of the same word families. Which words are a part of the same word family? चलिए, तो सेम वर्ड फैमिली में हम क्या करेंगे बच्चा? यू हैव 3 वर्ड्स ओवर हियर. अभी 3 वर्ड्स में से फाइंड करेंगे. हॉट, हर्ट, कट. फोकस ऑन द मिडिल साउंड एंड एंड साउंड. लुक, जॉइन द साउंड ऑफ ईच वर्ड एंड रीड द वर्ड. द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम मिडिल एंड एंड साउंड्स बिलोंग्स टू द सेम वर्ड फैमिली. Like this way you have to speak all the sounds and think the letters should be same, the sounds should be same. Understood? It's hut and cut. Same way children. Run, cut, burn. Think everyone. Look, it's run and burn. Now, you have 3 more words. Cub, sub, gut. चलिए मुझे बताइए, which is the same word family? Is cub and sub, right? Look, cub, sub. Now children, tub, rub, pot. Okay, think everyone, which is the same word family? I will show you. It's tub and rub. Look children, it's verb, jug, pot. Think, think, think. Yes, it's verb and jug. Now, come to my second section and that is your whole words. In this, I am going to conduct dictation in your Google Meet also. But just recap and revise along with the spelling these whole words. Under, under. Without, without, anywhere, anywhere, different, different. It's learning, learning, about, about, yet, yet, made, made. Berries, berries, people, people. Same way children, वो मैं डिक्टेशन आपका गूगल मीट में कंडक्ट करूंगी. Learn along with the spellings all the whole words. Okay? चलिए, now open your SR12. What is this? This is my third section and that is your reading, listening, comprehension. जिसमें हम रीड करते हैं, लिसन करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, राइट?
तो हम न्यू स्टोरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंट बट द सेम। यहाँ पे मीनिंग बता रहे हैं कि डिफरेंट है लेकिन फिर भी एक जैसे है, सेम है। ओके, तो ऐसा ट्वेल ओपन करिए। ऑथर कोमल रामचंदानी, इलस्ट्रेशंस कीर्ति पन्ना। चलिए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। आई कम होम फ्रॉम स्कूल, दिस बॉय इज टेलिंग, वो स्कूल से घर पे आया। आई टेल माई मदर व्हाट आई लर्न, आके उसने क्या किया, उसने मम्मी को सब बात बताया कि मैंने स्कूल में क्या क्या किया और क्या क्या लर्न किया। बच्चों, आप लोग बताते हो आपकी मम्मी को? यू शुड बेटा, आपको बताना चाहिए। नाउ लिसन, वी लर्न अबाउट द ट्रिपल पीपल। उन्होंने बोला उसमें कि हमने ट्रिपल पीपल के बारे में लर्न किया। लुक द पीपल्स, पहले के जमाने में वो लोग, उसको हम बोलते थे आदिवासी। अंडरस्टूड? तो वो उसकी मम्मी को बता रहा है। सम लिव्स इन फॉरेस्ट, वो लोग कहाँ पे रहते थे? फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते थे। लुक, वी लिव इन द सिटी, हम कहाँ पे रहते हैं? सिटीज में रहते हैं, राइट? दे ईट फ्रूट्स एंड बेरीज, वो लोग फ्रूट्स एंड बेरीज खाते थे। वी ईट दाल एंड राइस, हम लोग क्या करते हैं? दाल एंड राइस, दाल चावल बोलते हैं ना वो। वी वेयर कॉटन एंड वूलन क्लोथ्स, हम सीजन्स के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? कॉटन एंड वूलन क्लोथ्स। दे वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम लीव्स, और वो कैसे क्लोथ्स पहनते थे? लीव्स से बना हुआ। व्हाट इज लीव्स? यानी पांदड़ा। ओके, पत्ते, पत्ते से बना हुआ कपड़ा पहनते थे। दे लिव इन हट्स मेड ऑफ स्ट्रॉ, वो ऐसे हट में रहते थे। हट यानी झुपड़ी, मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से बनी हुई थी ये झुपड़ी। वी लिव इन हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, हम कौन से हाउस में रहते थे? मेड ऑफ ब्रिक्स में रहते हैं। ओके, ब्रिक्स यानी क्या? इन गुजराती वी आर टेलिंग ईट, ईट से बना हुआ घर। वी आर डिफरेंट, हम दोनों अलग हैं। यट द सेम, देखो यट भी आ गया, यट द सेम, अंडरस्टूड? लेकिन फिर भी हम सेम है। नाउ चिल्ड्रन, वी ऑल लिव इन इंडिया, वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो हमें क्या बोला जाता है? वी ऑल आर क्या? इंडियंस, हम सब लोग क्या है? इंडियंस है। लुक चिल्ड्रन, ओपन योर वोकैबुलरी वर्ड्स, कीप योर फिंगर एंड स्पीक अलोंग विथ मी 2 times. ट्रिपल, ट्रिपल, लीव्स, लीव्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स, वुलन, वुलन, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, सिटी, सिटी। चलिए मैं वापस आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रिपल का मतलब है पहले के जमाने में जो इंसान वो लीव्स के पत्ते पहन के जो जंगल में रहते थे, उसको हम ऐसा भी बोलते थे आदिवासी। यस, ओके। देन लीव्स यानी पांदड़ा, पत्ते। ब्रिक्स यानी ईट। वूलन क्लोथ्स यानी हम सबको पता है, शीप गिव्स अस वूल, शीप हमें वूल देता है और उसे ऊन भी बोला जाता है। ओके, उनसे बना, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, राइट? स्वेटर। देन स्ट्रॉ, आप सबको पता है व्हाट इज स्ट्रॉ? सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने में, कोल्ड ड्रिंक्स पीने में आप यूज करते हो। एंड सिटी, सिटी का मतलब है शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, जैसे कि मुंबई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, दे आर सिटीज, राजकोट। नाउ चिल्ड्रन, कम टू द वोकैबुलरी वर्ड्स एक्टिविटी। क्वेश्चन 2, आपको यहाँ पे वोकैबुलरी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी बच्चा। लुक, इट्स WS 19 क्वेश्चन 2। WS 19 ओपन करिए, क्वेश्चन 2। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस द अंडरलाइन वर्ड। अभी यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, ये कौन से वर्ड है? वोकैबुलरी वर्ड्स, और आपको उससे जो मैच होता है वही पिक्चर को सर्कल करना है। वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। वी लर्न अबाउट ट्रिपल पीपल, तो इनमें से ट्रिपल कौन है? ट्रिपल 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 कौन है? उस पे सर्कल करिए, लाइक दिस वे। सेम वे, राज लिव्स इन द सिटी। देखिए पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, इसमें से सिटी वाला पिक्चर कौन से?
कौन सा है उस पे सर्कल करिए। नाउ ओपन योर WS20 क्वेश्चन 1। सेम है बेटा, वोकैबुलरी वर्ड्स। चलिए आई एम रीडिंग फॉर यू, यू थिंक एंड सर्कल इट। टेक आउट योर पेंसिल, टेक आउट योर वर्कबुक, ओपन योर WS20 एंड डू इट। सर्कल द पिक्चर, मतलब सर्कल करो दैट मैचेस द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसके साथ जो पिक्चर मैच होते हैं ना, उस पे सर्कल करिए। आई एम रीडिंग फॉर यू, ओके। दे वर क्लोथ्स मेड फ्रॉम लीव्स। तो इसमें से लीव्स कौन सा है, ढूंढिए। बी पे आ जाइए। वी वेयर कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स। तो इसमें वूलन क्लॉथ्स कौन से हैं? सी, दे लिव इन हट्स मेड अप ऑफ स्ट्रॉ। अब इसमें से हट कौन सा है, मेड अप ऑफ स्ट्रॉ। वी लिव इन हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इसमें से ब्रिक वाला हाउस कौन सा है? लेट्स सी द आंसर चिल्ड्रन। टेबल, सिटी, सर्कल इट, लीव्स, वुलन क्लोथ्स, वुलन, स्ट्रॉ वाला हाउस एंड ब्रिक, ब्रिक्स वाला हाउस। Okay, now wait children, here I am going to ask you some question regarding to our story. मैं आपको पूछने जा रही हूँ, right? Do you tell your mother what do you do in the school? मैंने आगे ही बोला था, क्या आप आपकी मम्मी को बोलते हो कि आप स्कूल में जाके क्या क्या करके आते हो? अगर नहीं बोलते हो तो do it. Where do triple people live? वो ट्रिपल पीपल कहाँ पे रहते हैं? मैंने अभी क्या बताया आपको? Who will tell me? Yes, they live in a forest. वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे। What do triple people eat? वो लोग क्या खाते थे? Okay, they eat fruits and berries. What do triple people wear? वो क्या पहनते थे? They wear clothes made up from leaves. पत्ते से बना हुआ ड्रेस पहनते थे वो लोग। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ आई एम गोइंग टू कंडक्ट माय फोर्थ सेक्शन एंड दैट इज ग्रामर। ग्रामर पे आ जाइए। मैंने आपको प्रेपोजिशन सिखाया है इन माय प्रीवियस क्लास और मैंने आपको 4 प्रेपोजिशन सिखाए हैं। हाउ मेनी? 4। इन, ऑन, इनटू एंड नियर। तो उसी को ध्यान में रख के आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस भी मिल रहे हैं बेटा सेंटेंस में। रीड द सेंटेंस, सेंटेंस को रीड करो। सी द पिक्चर केयरफुली, पिक्चर को ध्यान से देखो। सोचो कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और उसको फिलअप करो। मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, ओके। ए, अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट में से सही आंसर को चूज करना है। ए, द लीफ इज डैश द ट्री। इन, नियर। द बर्ड इज डैश द डॉग। ऑन, नियर। द yo-yo is dash the box. In, on. The fish jumps dash the pond into pond. पिक्चर देखिए. Okay children, open your WS25. Question 1. Choose the correct word to complete each sentences. अभी इसी में भी सेम करना है. चलिए मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ. The fish is dash the water. In, on. The eggs are dash the nest. In, near. The dog is dash the girl. Near, on. The cat is dash the table. On, into. Okay children, match the position of the object with the picture. यहाँ पे आपको मैचिंग करना है. उसी में आ जाइए WS25 पे क्वेश्चन 2 पे. यहाँ पे 4 पिक्चर्स है और जो अंडरलाइन वर्ड है ना उस पे सोचना है कि कौन सा प्रेपोजिशन है और कौन सा पिक्चर उसके लिए करेक्ट मैच कर रहा है. ए, द गर्ल इज नियर द टेबल. यहाँ पे बोला है गर्ल है, नियर है, टेबल के बाजू में है.
तो नियर टेबल गर्ल कौन सा पिक्चर है, फाइंड आउट और स्केल ले लो एंड मैच करो, जहां पे भी सही आंसर है। बी, द बॉय इज पुटिंग द टॉय इनटू द बॉक्स। अभी एक बॉय है, एक टॉय बॉक्स है और वो बच्चा इनटू यानी रख रहा है। सोचिए, फाइंड आउट करिए, मैच करिए। सी, द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर। अभी एक लड़का है तो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। फाइंड आउट द पिक्चर एंड मैच इट। डी, द की इज इन द लॉक। अभी चाबी कहाँ पे है, की लॉक के अंदर। ओके, ढूंढिए। ओके चिल्ड्रन, लेट्स चेक द आंसर्स। यहाँ पे नियर, ऑन, इन, इनटू। Look, it's in, near, on. And this is the matching of the pictures. Do it nicely, bachas. Just check your answers. Okay, children. Look, the CAF strategy. मैं आपको ये explain करने जा रही हूँ. This is my 5th section and that is your writing speaking expression. Bacha, in our previous class we already drawn and labeled the picture. Which picture we have drawn? Come on, tag me. कौन सा picture हम सबने draw किया है? कौन बताएगा बेटा? जो picture आपने draw किया है दिवाली के ऊपर my favorite festival या फिर कोई और फेस्टिवल जैसे कि उत्तरायण, आपने बहुत अच्छे पिक्चर्स ड्रॉ किए थे। तो आप वो ओपन करिए, उसी के ऊपर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे, यस, सेंटेंस भी लिखे थे। कैसे? देखिए, माय फेवरेट फेस्टिवल, द फेस्टिवल इज डैश, वी वेर डैश ऑन दिस डे, वी गिव डैश टू ईच अदर, वी हैव फन विद डैश। अगर चाहिए कहाँ पे भी आपने आंसर फिलअप किए हैं और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, जैसे कि मैंने बोला था, This festival is Diwali. We wear new clothes on this day. We give gifts to each other. We have fun with family. Understood? तो अगर बच्चा देखे, क्या करना है? Keep these in your mind ताकि आप और अच्छा कर पाओ। Understood? देखिए, 3 steps to edit and improve your writing. ये 3 steps आप याद रखो जो आपको एडिट कैसे करना है और आपके इम्प्रूव कैसे करना है राइटिंग्स को, वो आपको सिखाएगा। फर्स्ट स्टेप इज सी, करेक्ट ऑल द स्पेलिंग्स। अगर दिस इज माय मदर, हमने लिखा है माय, तो माय इज रॉन्ग, तो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग? माय। तो करेक्ट स्पेलिंग कैसे करते हैं? दैट इज ओके। ए, एड मोर न्यू वर्ड्स। अभी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं कि आई ईट विथ माई मदर, ऐसे ही आपके पास एक सेंटेंस है, आई ईट विथ माई मदर। इसमें और ऐड कैसे करेंगे? करेक्ट, देन ऐड, ओके। आई ईट रेड एप्पल विथ माई मदर। हम स्पेसिफिकली उसको बोलते हैं कि मैंने मेरी मम्मी के साथ खाया। आई ईट चपाती विथ माई मदर, ओके। तो हम ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो हमने इसी सेंटेंस में ऐड किया, तो और कुछ मिला हमें सेंटेंस में, ओके। एंड इट इज एफ। एफ, फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अभी दिस इज अ डैश, यहाँ पे लिखा है दिस इज अ डॉग, इट कैन डैश, इट कैन जंप। मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस इज अ कैंगारू, तो मैंने एक और नया वर्ड बोला, कैंगारू। Try with your phonic sounds also to make a spellings. It can hop, jump, और वो कैंगारू ऐसे hop भी करता है। तो और कुछ नया बनाया हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर से। तो जो सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पे लिखाए थे उसमें मैंने दिवाली लिखवाया था, मैंने दिवाली चूज किया था। अगर आप उत्तरायण पे लिखते हो काइट फ्लाइंग डे, दिस फेस्टिवल इज ऑफ काइट फ्लाइंग, ओके। We wear new clothes, तो इसी में भी पहना जाता है। We give dash to each other, हम लोग चिट्ठी भी देते हैं, राइट? तो कुछ भी लिखो, we have fun with friends लिखो, family लिखो, पेरेंट्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग।
Understood children? So like this way, this CAS strategy, correct the spellings, add the words and spellings and follow the sentence structure. इसी तरह से हम sentences form करते हैं. Understood children? Look, like this way sentences we are making. Okay. So till then, take care. Bye bye and Jai Hind. Happy learning.